inverting summing amplifier we have already seen, and I suppose yesterday we were seeing the non-inverting summing amplifier. So let me share that screen first. You can remember. So what do we observe here? That instead of inverting terminal, we are now using a non-inverting terminal. Okay, and I have shown two inputs V1 and V2 which are being added through this non-inverting terminal, and let us say these are something, let's say RF and some R, let's say. Okay, so how do we analyze this one? I suppose it is better when there is non-inverting type of amplifier. So yesterday we have seen that we know if a connection is like this, if it is negative, it shows me there is a negative feedback. There is a negative feedback. And now when I am connecting the input to non-inverting one, let's say this is Vin, you may show like this or anywhere, and you are grounding this terminal, so this becomes non-inverting amplifier. So what will be the output here in the non-inverting amplifier? What will be the gain in the non-inverting amplifier? 1 plus RF 1 upon plus RF upon R1. 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 So if I write like this, output voltage will be equal. It means if I know this voltage, I am able to get the output voltage. This you should remember. कई बार ऐसी चीजें आएगी यहाँ पे, मैं जानबूझ के यहाँ बता रहा हूँ कि कोई ऐसे सर्किट रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, यहाँ कुछ वोल्टेज रहेगा, तो याद रखना कि हमको ये अगर ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट का वोल्टेज, ना कि इस पॉइंट का वोल्टेज. सो it means if I know this voltage which is here a Vin, I can get the output voltage is this one. Same thing will apply. If I know this voltage, I'll directly apply 1 plus RF upon R, let's say this VO equals to, and whatever is here voltage. Now here it is given in the terms of V plus. Okay, that can be anything. It doesn't matter. What do you write? Maybe I'll write here V1, maybe I'll write here V2 or VF, whatever it may be. But what I want, the voltage at this point. So is it clear? How can I get the voltage at this point? Now what do we observe? There is R1, there is another R2. Here it is given V2, here it is given V1, and this point is given to non-inverting terminal, which named here a V plus. Now 2 voltage source are there. Nothing is grounded. So in this case, we apply the superposition theorem. Superposition theorem. It means if there are multiple sources, the effect of overall sources will be equal to the effect of individual sources. What does it mean? That whatever may be the voltage V plus due to V1 and V2 will be equals to the effect of V1 alone plus effect of V2 alone. So that gives us a simplification, or to analyze this circuit in a simple way. How? Let us say I am taking this V plus due to, let's say, V1. V plus due to V1 means what I am doing? I am making V2 equals to 0. Just observe, if I make V2 equals to 0 means it will be grounded. So how it will look? This is a resistor R1, this is R2, this is R1, here it is R2 and it is grounded. This is point V plus and this upper point is connected to V1. So what will be the voltage V plus due to V1? It will be the voltage across R2. What will be the voltage across R2? This V1 is connected across this total. This is V1. So what will be the voltage at R2? Yes, Sir, R2. V1 is the upper voltage है ना यहाँ पे, तो V1 is total voltage across R1 and R2. जबकि हमको यहाँ बीच का पॉइंट चाहिए, तो बीच का वोल्टेज यानी सीरीज डिवाइडर नेटवर्क लगाना पड़ेगा,
दो रजिस्टर सीरीज में है और ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे V1 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस, जबकि ये R1 है। तो कैसे निकालते हैं हम? जिसके अक्रॉस निकालना है वो रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ओके, इनटू जो भी टोटल वोल्टेज है, यानी यहाँ कितना है V1। सेम वे अब दूसरे का इफेक्ट निकालू मैंने, कैसे? V प्लस ड्यू टू V2। तो मैं क्या करूंगा, अब V1 को 0 कर दूंगा और V2 को रखूंगा। तो ये कैसे दिखेगा? ये जैसे कि ये ग्राउंड हो गया, इस तरीके से दिखेगा। ये R1 ये ग्राउंड हो गया, यहाँ R2 ये लगा है किसको? V2 को, और मुझे ये बीच में का पॉइंट चाहिए। इसको ही मैं ऐसे बना दूं उल्टा करके कि यहाँ R2 लिखूं, यहाँ पे V2 लिख दूं, यहाँ R1 और ये ग्राउंडेड, उल्टा करके। तो ये वाला मेरा पॉइंट V प्लस है। तो V प्लस ड्यू टू V2 क्या होगा? किसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है बताओ तो? V प्लस अब किसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है? R1 R1 के अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे आएगा? इसी तरीके से फार्मूला बताओ या वैल्यू निकालो। R1 डिवाइड बाय हाँ, R1 प्लस R2 ओवरऑल वोल्टेज। R1 प्लस R2 इंटू V1। V1 यहाँ V1 है कि V2 है? पहले देखो, V2 क्योंकि यहाँ V2 V1 0 है यहाँ पे, है ना, V2 के कारण। तो इस तरीके से V प्लस यानी वोल्टेज क्या होगा? तो ये दोनों का इफेक्ट हम सुपरपोजिशन थ्योरम का मीनिंग बाय SPT, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, V प्लस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर्किट हमारा आ गया था V प्लस इक्वल्स टू V प्लस ड्यू टू V1 और इक्वल टू V प्लस ड्यू टू V2। तो पहले वाले केस में क्या आया था? R2 के अक्रॉस था, ये R2 के अक्रॉस था वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 एंड इट वाज ड्यू टू V1, तो ये V1। और ये R1 के अक्रॉस था, R1 प्लस R2 और इट वाज ड्यू टू V2। तो ये यहाँ का वोल्टेज पता चल गया हमको। अब हमको फार्मूला मालूम है कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा? AF टाइम्स V प्लस जो भी वोल्टेज है। तो हम लिखेंगे यहाँ ओवरऑल कि यहाँ पे क्या है 1 प्लस RA, यहाँ पे RF लिख सकते हैं आप, RB इंटू V प्लस क्या है? ये जो है वोल्टेज। मैं चाहे तो ये कॉमन ले सकता हूँ R1 प्लस R2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ R2V1 प्लस R1V2। ठीक है, इस तरीके से। इसी को अगर हमने इस तरीके से सॉल्व किया, RB इज इक्वल टू RB प्लस RA, ठीक है, और यहाँ पे R2V1 प्लस R1V2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू सब इक्वल ले लिए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू RA इक्वल टू RB, तो हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? देखो तो ये सब इक्वल है, सबको मैंने R लिख देता हूँ। ये RB प्लस RA ट्वाइस R, ये R, ये ट्वाइस R, ये R बाहर निकल जाएगा, V1 प्लस V2, ये ट्वाइस R से कैंसिल हो जाएगा, ये R से कैंसिल हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिला? V1 प्लस V2। ये समझ में आया क्या? मैं आपको जानबूझ के लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं जानबूझ के, ये 2 इनपुट उतना जरूरी नहीं है जितना 3 इनपुट का है, तो वो मैं सर्किट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर 3 इमेज दिख रही है क्या आपको? यस सर। ये जब तक दिखता नहीं ना प्लस VCC माइनस V, मुझे चैन नहीं आएगा, बिकॉज इट नीड्स अ पावर सप्लाई ना। Now how do we analyze this circuit? You just tell me. First of all, in what configuration it is connected? Inverting or non-inverting? Non-inverting. Is it clear? Everybody says like this that it is in non-inverting. Yes sir। सबको पक्का नहीं इतना, ये नॉन इन्वर्टिंग में है करके। तो ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो VA VB VC ये इनपुट्स है, देख रहे हैं आप, और वो कहाँ कनेक्टेड है वो देखना चाहिए हमने। तो ये सब रजिस्टर के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग को आ रहा है, और इन्वर्टिंग का एंड जो है वो ग्राउंडेड है,
इसका मतलब पक्का ये नॉन इन्वर्टिंग है। ओवरऑल इफेक्ट ये पॉजिटिव आने वाला है गेन का। अब बताओ कि क्या मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे चाहिए है किसी भी तरीके से आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो मैंने क्या सोचना चाहिए, क्या निकालना चाहिए? बोलिए बोलिए, बराबर बोल रहे हैं आप। क्या निकालना चाहिए? इसके जस्ट पहले हमने ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इतना पक्का है। और हमको मालूम है कि अगर नॉन इन्वर्टिंग में अगर इस तरीके से RF और R1 लगा हुआ है और ये ग्राउंडेड है, तो बस मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज मिल गया तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा फार्मूला, कौन सा? 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स यहाँ जो भी वोल्टेज है वो Vx है तो Vx। तो मुझे ये V1 वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट कर सका, ठीक है ना, इफ आई कैन गेट दिस V1, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? वी नीड टू फाइंड V1, ठीक है ना? इज इट क्लियर? क्योंकि V1 मिल गया तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? V1 मिल गया तो मैं लिखूंगा 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स V1। ये है मुझे चाहिए, ठीक है। अब V1 कैलकुलेट करने के लिए सोचते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है V1 कैलकुलेट करने के लिए? वी ऑब्जर्व दैट दिस इज लाइक सम सीरीज नेटवर्क बट देयर आर मल्टीपल सोर्स। जब मल्टीपल सोर्सेस होते हैं या मल्टीपल वोल्टेजेस कनेक्ट होते हैं तो कौन सा अपन थ्योरम लगाते हैं, बताया था? सुपरपोजिशन। अभी सुपरपोजिशन अभी तक नाम याद नहीं हुआ। सुपर पोजिशन थ्योरम। जब देखिए भाई मेरे को V1 चाहिए तो मैं सिर्फ इसको इक्विवेलेंट यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि मेरे को आसान जाए। ये रजिस्टर सभी इक्वल ले लिया तो मुझे ज्यादा एनालिसिस करने में तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब रजिस्टर इक्वल है तीनों, ठीक है। और मुझे ये पॉइंट का वोल्टेज चाहिए V1, और यहाँ पे दिया है VA, यहाँ पे दिया है VB और यहाँ पे दिया है VC। तो मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं मालूम है V1 ड्यू टू VA, यानी ये V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1 ड्यू टू VA, V1 ड्यू टू VB प्लस V1 ड्यू टू VC, यानी इंडिविजुअल का इफेक्ट ये ओवरऑल इफेक्ट होगा। ये समझ में आया कि आपने को ये स्टेप? अब देखो कितना आसान हो जाता है ये एनालाइज करना। इसका मीनिंग ये है कि if you want to find out V1 due to VA, you are keeping the VA source active and all other sources deactivate or you can say reduce to zero or null it। तो इक्विवेलेंटली वो कैसे दिखेगा जरा देखते हैं। वो इक्विवेलेंटली कैसे दिखेगा? यहाँ पे सर्किट ये R, यहाँ लिया हुआ है VA, ठीक है। यहाँ भी R है लेकिन ये ग्राउंड, ये वोल्टेज जीरो कर दिया मैंने। ये भी R है, ये भी ग्राउंडेड हो गया और मुझे ये वोल्टेज चाहिए। अब बताओ वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब V1 वोल्टेज आप निकाल सकते हैं क्या? जो आप चाहते हैं तो देखो मैं इसका इक्विवेलेंटली अलग तरीके से बनाता हूँ और भी आसान हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला ये R है जिसको वोल्टेज दिया है VA, और यहाँ दो रजिस्टर ये लटक गए, ग्राउंड में हो गए, ग्राउंड हो गए। ये ग्राउंड यानी दोनों एक साथ हो गए। इसका भी वैल्यू R है, इसका भी R वैल्यू है, और मुझे ये वोल्टेज चाहिए V1। अब बताओ, बता सकते हैं तो ये V1 वोल्टेज किसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा बताओ? ये ऊपर वाले वोल्टेज R के अक्रॉस कि ये नीचे वाले R के अक्रॉस? सर ऊपर वाला, ऊपर वाले के अक्रॉस। अरे V1 वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं ना भाई। यहाँ तो V1 यहाँ अगर मुझे एक बात बताओ, ऐसा ट्रांजिस्टर रहता है और यहाँ प्लस VCC लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? ये प्लस VCC विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। कभी भी सोचना, ये VA है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये VA कहां से कहां तक वोल्टेज है? यहां से यहां तक वोल्टेज है। जबकि हमको V1 चाहिए तो कहां पे चाहिए? यहां से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब किसके अक्रॉस है आप बताओ? सर दोनों रजिस्टर के नीचे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसके अक्रॉस है? दोनों रजिस्टर के अक्रॉस। फिर से लगे तो मैं यहाँ बना रहा हूँ इस डायग्राम को ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये रजिस्टर R ऊपर है, ये VA लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ दो रजिस्टर है, ये दोनों एंड लगे हुए ग्राउंडेड है। अब बताओ यहाँ पे मुझे V1 चाहिए है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। ये दो रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में है ना? जो नीचे के तो दो है। पैरेलल में
रजिस्टर का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? ये R, और मुझे चाहिए ये इक्विवेलेंट इसका रजिस्टर यहाँ कितना होगा, ताकि मैं ये V1 कैलकुलेट कर सकूं, जो कि यहाँ वोल्टेज दिया है VA। क्या होता है दो रजिस्टर पैरेलल में, कैसे कितनी वैल्यू कैसे निकलती है उसके रजिस्टर की? 1/R। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही ना? ऐसा बोलना चाह रहे क्या? यस सर। हाँ सर, यस। और ये वाला फार्मूला याद है क्या फिर फास्ट में? आप थोड़े बड़े हो गए तो R पैरेलल, देखो ये मैं बताता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही बोलना चाह रहे थे ना आप? यस सर। यस सर। तो ये इक्वल टू क्या होगा? R1 इंटू R2, ऊपर क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1, बराबर है ना? यस सर। तो ये R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? उसका रेसिप्रोकल, यानी क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसलिए हाँ, तो इसलिए अब जो है डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये भी डायरेक्ट याद रखना कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, ठीक है ना? और दो इक्वल रजिस्टर अगर पैरेलल में आ जाए तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हाफ होता है। कैसे होता है देखो, पर ये R1 इंटू R2, यानी क्या हो जाएगा? ये दोनों R इक्वल है, R इंटू R अपॉन R प्लस R, दोनों रजिस्टर इक्वल है, R इंटू R अपॉन R प्लस R यानी 2R। R कैंसिल हो गया, कितना बचा? हाँ सर। R/2। हमेशा याद रखना, इसलिए 100 ओम अगर 100 ओम के पैरेलल में आ जाए तो दिमाग में पट से उसका हाफ कर देना, या तो फिर R इंटू R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R, ऐसा करना, R कैंसल, R/2 हो जाएगा। यहाँ हो गया इक्विवेलेंट रजिस्टर R/2, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, और अब V1 वोल्टेज निकालना है। तो V1 वोल्टेज किसके अक्रॉस है? R के अक्रॉस है कि R/2 के अक्रॉस है? R/2। तो कैसे निकालते हैं हम? V1 इक्वल्स टू, ये V1 ड्यू टू VA है ना? मैं जानबूझ के अलग करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना होता है वो लिखते हैं हम। यहाँ क्या लिखेंगे? R/2 अपॉन क्या लिखते हैं हम? कितना रजिस्टर लिखते हैं यहाँ पे? दोनों का एडिशन कर देते हैं, R प्लस R/2 इंटू वोल्टेज टोटल कितना है? VA। ये समझ में आया क्या? पहले बताओ, ये समझ में आया क्या? ये R/2 जैसे के वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या होगा? ये 2 कॉमन निकलेगा, 2R प्लस R कितना हो जाएगा? 3R आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चले जाएगा। ये देखो, तो ये समझ में आया क्या? ये इसका क्या है? LCM 2R प्लस R 3R, और ये नीचे 2 है तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। ये ठीक है क्या? समझ में आया क्या? देखो तो ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, R कैंसिल, कितना आ गया फिर? बचाओ, बताओ। 1/3। VA/3। सिमिलरली जब आप V1 ड्यू टू VB करेंगे तो वो भी VB/3 आएगा। V1 ड्यू टू VC करेंगे तो वो VC/3 आएगा। सेम है ना, रजिस्टर सेम है, ऐसे इक्विवेलेंट आएगा। देखो जरा, सोचते हैं जरा, वो डायग्राम को ध्यान देते। कैसा था? ये 3 रजिस्टर इक्वल है, यहाँ पे मैंने VA एक्टिव किया तो ये 2 रजिस्टर लटक गए नीचे ग्राउंड होके। अगर मैंने VB को एक्टिव किया तो ये 2 रजिस्टर ग्राउंड हो जाएंगे इक्विवेलेंटली। आखिर में डायग्राम सेम बनेगा ना, इसी तरीके से होगा, सबकी वैल्यू ऐसी आएगी। इसका मतलब मुझे ओवरऑल V1 क्या मिलेगा? V1 ड्यू टू VA, V1 ड्यू टू VB प्लस V1 ड्यू टू VC, एंड ऑल दिस इक्वल टू VA/3 plus VB/3 plus VC/3, and that gives me V1 is equal to 1/3 of VA plus VB plus VC। अब V1 निकला है हमारा, VO नहीं निकला है। VO की वैल्यू कितनी है? ये देखो, 1+। ठीक है। अब वैल्यू रख देना है वहां पे, यानी कि गेन टाइम्स उतना हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू 1 plus RF upon R1 times V1, which is coming out to be 1 plus RF upon R1, कितना है? VA plus VB plus VC/3। ये समझ में आ गया आपके? Yes, sir. यस सर। आप देख रहे आप, why should I say it is a summing amplifier? Because these resistors, these are constant, 3 is constant,
what is not constant? VA, VB, VC. And in what form they are? That the output voltage is proportional to the sum of VA plus VB plus VC. मतलब ये एडिशन को प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये एडर है, समर है, समिंग एम्पलीफायर है, एम्पलीफाई करता है 1 प्लस समथिंग टाइम से, तो ये एम्पलीफायर है। अच्छा चलो बताओ, गेन की वैल्यू या RF अपन R1 की वैल्यू क्या रखना चाहिए? तो डायरेक्टली मुझे VO इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC आएगा। बताओ, ये चाहिए मुझे, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? 1 प्लस RF अपन R1 कितना लेना पड़ेगा? बराबर बोले आपने, इक्वल टू 3। इसका मतलब RF अपन R1 कितना हो जाएगा? इसको 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, 3 माइनस 1 2। ये समझ में आया क्या RF अपन R1 कि नहीं? यस सर। इससे क्या पता मिल रहा है कि हमको RF इक्वल टू 2 टाइम्स R1 रखना पड़ेगा। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू डायरेक्ट VA प्लस VB प्लस VC। चलो और एक असाइन, और एक चीज पूछता हूँ कि मुझे एवरेजिंग सर्किट बनाना है, इसको अब कितनी वैल्यू रखना पड़ेगा? ये आना चाहिए, हाँ 3 आना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस RF अपन R1 क्या रखना पड़ेगा मुझे? सर अगर 3 रखेंगे तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली RF 0 होना चाहिए सर, RF 0। अभी 3 रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो वो हम कर चुके हैं, यहाँ पे करें ना, यहाँ पे सर RF 0 कर सकते हैं ना? हाँ वही आएगा ना, पर पहले क्या होगा, यहाँ इस क्वांटिटी को देखो, मुझे एवरेजिंग चाहिए, तो VA प्लस VB प्लस VC डिवाइड बाय 3 यहाँ तक के चाहिए है, ये क्वांटिटी मुझे चाहिए है। क्या नहीं चाहिए? ये 1 होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से लॉजिक बनाना है। ये जो 1 प्लस RF अपन R1 है, ये 1 चाहिए। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन 1 यानी क्या होता है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो इस 1 को ट्रांसफर कर दो तो RF अपन R1 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब RF इक्वल टू 0 रखो और R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब ओपन करो। तो ये ऐसा सर्किट कैसे बनता है? यूनिटी गेन एम्पलीफायर। कैसे बनता है? यूनिटी गेन एम्पलीफायर। कैसे रहता है? ये कैसे रहता है यूनिटी गेन एम्पलीफायर? बस ये यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ये इस तरीके से, तो ये हो गया यूनिटी गेन एम्पलीफायर। अब बस फर्क क्या है यहाँ पे कि इस नॉन इन्वर्टिंग में हमने एक इनपुट की जगह 3 इनपुट दिया हुआ है, VA, VB, VC, these are R. This VO is going to give you the VA plus VB plus VC divided by 3, averaging. So I hope it is clear. Non-inverting adder, non-inverting summing amplifier. अब हम थोड़ा सबट्रैक्टर देखें। एक्चुअली ये जो सबट्रैक्टर है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हमने जरूरत नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ही एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। सर इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग है, चलो इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है? ये एक वोल्टेज दिया हुआ है V1 और दूसरा वोल्टेज दिया है V2। V1 लगा है नॉन इन्वर्टिंग को और V2 लगा है इन्वर्टिंग को, तो इसमें तो दोनों बड़ा गड़बड़ हो गई है, इन्वर्टिंग भी है और नॉन इन्वर्टिंग भी है। इसलिए ये डिफरेंशियल मोड में है, इन्वर्टिंग को भी लगा है और नॉन इन्वर्टिंग को भी लगा है। तो फिर इसको एनालाइज कैसे करने का? हमारे पास मालूम है हमको कि मल्टीपल सोर्स रहे तो हमने कौन सा थ्योरम लगाना है? बस यही याद रखो, इतने बार काम आएगा ये, बाई सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का एक ही मीनिंग है कि हम चाह रहे कि दोनों का इफेक्ट पता चले। तो मुझे क्या पता करना है कि आउटपुट U2 V1 क्या है और आउटपुट U2 V2 क्या है, तो मुझे ओवरऑल आउटपुट पता चल जाएगा। ये मेरा बेसिक, मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो अब एक एक पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, सबसे आसान ले लेते हैं, VO ड्यू टू V2। बताओ, अगर VO ड्यू टू V2 कर रहे हैं तो V2 एक्टिव रखेंगे, दूसरा वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे हम लोग? 0 कर देंगे। तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो बनाना जरूरी है कि ये ऐसे डायग्राम दिखेगा, यहाँ R है, यहाँ R है और इसको हमने एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है, यहाँ भी एक रजिस्टर है, वो यहाँ वोल्टेज था V1। अब ये तो हमने वोल्टेज 0 कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो ये R, ये R, ये R, ये R, और यहाँ कौन सा वोल्टेज है? अब बताओ क्या फर्क लग रहा है, कैसा है? अब ये अब पूछ सकते हैं आप, ये इन्वर्टिंग में है कि नॉन इन्वर्टिंग में? अब बता सकते हैं आप। एक ही वोल्टेज है V2,
इन्वर्टिंग है। पहली बात तो कि ये इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग में हमको फार्मूला मालूम होता है कि अगर इन्वर्टिंग का वोल्टेज मालूम हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते कि इसका AF क्या होता है, -RF/R1। ये मालूम था ना अपने को, बस वही यहाँ लगाना है। क्यों, देखो ये पॉइंट आप देखोगे कि ये पॉइंट ग्राउंड किया हुआ है, ये पॉइंट ग्राउंड किया है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, यहाँ 0 ही वोल्ट आएगा, कोई वोल्टेज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राउंडेड ही है। जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड होता है और इन्वर्टिंग को इनपुट V2 दिया होता है तो वो हो जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमको आउटपुट वोल्टेज मालूम है कि -RF/R1 आता है। तो -RF की जगह क्या है, यहाँ वैल्यू कितनी दी है, RF में फीडबैक में रजिस्टर की वैल्यू क्या है, R। अब R1 की वैल्यू कितनी है, R इंटू यहाँ का वोल्टेज कितना है, V2। तो VO ड्यू टू V2 कितना आया, -V2। प्लस और माइनस में बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। अब VO ड्यू टू V2 निकाले, अब क्या निकालना चाहिए हमने, VO ड्यू टू V1। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा जरा ऑब्जर्व करो। यहाँ ऑप एम्प सर्किट, ऑप एम्प लगा हुआ है, ऊपर के रजिस्टर जैसे के वैसे मैंने लगा दिए। और अब ऊपर का वोल्टेज मैं 0 करूँ कि एक्टिव रखूँ, 0 कर देता हूँ, इसको 0 कर दिया, ठीक है। यानी ये R। और अब यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसा किया हुआ और एक रजिस्टर ग्राउंडेड है, ये R और यहाँ कितना वोल्टेज है, V1। V1। अब बताओ ये इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग। किसी को कोई यानी दिक्कत समझने में, नो सर। नहीं, पक्की बात। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये V1 डायरेक्टली मत लिख देना 1+RF/R1 टाइम्स V1। याद रखो मैं बार बार फोकस क्या कर रहा था, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज। हाँ, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया VX, जानबूझ के। तो मुझे अगर VX रहता तो मैं डायरेक्ट लिखता 1+RF/R1 इंटू VX। लेकिन VX का वोल्टेज कैसे निकालेंगे बताओ, अभी कैसा आ रहा है, ये कैसे है, VX किसके अक्रॉस है, R के अक्रॉस है, यानी दो रजिस्टर इक्वल है और यहाँ पे VX है। तो VX की वैल्यू कितनी होगी, इसके अक्रॉस है, नीचे के R के अक्रॉस है कि ऊपर के R के अक्रॉस है, नीचे के। तो बस वो रजिस्टर डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर इनटू वोल्टेज टोटल, कितना आ गया ये R/2R। V1 कितना हो गया, बराबर है V1/2। Yes, sir. बस यहाँ पे लगना है 1+RF/R1। RF में कितनी वैल्यू है, 1+R/R इंटू VX निकाल चुके हम लोग, कितना आया था, V1/2। हाँ, ये R/R कितना हो जाएगा, 1 कैंसल, 1+1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2। आ गया क्या V1 आ गया ना, यस सर। अब देखो अब चाहे तो यहाँ पे जो निकाला था इसको 1 नंबर दे देते हैं, या इसको नंबर दे दो 1, ये आपका नंबर 1, ठीक है, ये आपका नंबर 2, और अभी लास्ट आया 3। सो फ्रॉम 1 to 3 what I can write, that the overall output voltage VO equals to VO due to V2 plus VO due to V1 is equal to, पहले कितना आया था -V2, बाद में कितना आया V1। तो आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू क्या आया, V1 minus V2। सो इज इट एक्टिंग एज अ सबट्रैक्टर, यस सर। अब इसका एक्चुअल बड़ा फार्मूला बाद में देखेंगे, पर ये पता चल रहा है कि ये सबट्रैक्टर जैसे ऐड कर रहा है। यहाँ पे V1 V2 लिखने में गलती हो जाती है अपने से, क्या याद रखना, कभी भी याद कैसे रखना, नॉन इन्वर्टिंग वाला जो रहेगा वो नॉन इन्वर्टिंग आएगा, मतलब ये माइनस नहीं होगा, इसलिए ये वाला प्लस लेना V1, और जो इन्वर्टिंग का है वो माइनस हो जाएगा, तो V1 minus V2। अगर यहाँ V2 लिखोगे तो V2 minus V1। अल्टीमेटली क्या करना है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, वही हुआ कि नहीं, देखो तो जरा, V1 minus V2। अब इसी का एक थोड़ा सा छोटा रूप जिसको नाम दिया है समिंग एम्पलीफायर, ठीक है, इसी का मतलब ये दोनों का वर्जन, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये आप समझना ग्राउंडेड है, दिस इज ग्राउंडेड, ओके। यानी दो रजिस्टर दिखाया यहाँ पे और एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको नाम दे दिया मैंने
R, this is also R, this is also R, this is R, this is R, this R is grounded. So let us name a different one. मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ, इसको नाम दे दिया VA, इसको दे दिया VB, इसको VC और इसको VD। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे इसके पहले हमने सिंगल इनपुट देखा, फिर इसका डबल इनपुट देखा, अब दोनों जगह दे दिया है मैंने, यहाँ VA इनपुट दिया है, यहाँ VB इनपुट दिया है, यहाँ VC दिया है, यहाँ VD दिया और ये ग्राउंडेड है और सब रजिस्टर इक्वल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग समिंग एम्पलीफायर, इसको भी बोलते हैं। अंदाज तो लग ही गया होगा कि कुछ एडिशन होंगे और कुछ सब्ट्रैक्शन होंगे। कैसे एनालाइज करेंगे इसको? हाउ शुड वी एनालाइज दिस वन? आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? जब भी मल्टीपल सोर्सेस आते हैं हम कैसे करते हैं? पक्की बात, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब उसी हिसाब से सोचा जाए कि मैंने ये VC VD जीरो कर दिया तो मुझे VA VB भी जीरो करने की जरूरत नहीं है इसमें से एक, क्योंकि ये वाला मेरे को सर्किट मालूम है। ये देखो ये सब जीरो कर दिया। सपोज VC इज जीरो, VD इज जीरो, तो ये इस सर्किट कितना आसान हो जाएगा। इस ऑप एम्प में ये रजिस्टर्स बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन ये सब ग्राउंडेड है। ठीक है, ये तीनों रजिस्टर ग्राउंड हो गए। अब इन्वर्टिंग का क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ एक रजिस्टर है, तो ये दोनों को में से ये करने की सुपरपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा वाला हमने इन्वर्टिंग का समिंग एम्पलीफायर देख चुके हैं ना। यस क्या सर, आता था तब? V1 माइनस V2। एग्जैक्टली। तो डायरेक्टली मैं अब लिख लूं तो चलेगा क्या? यस सर। VO ड्यू टू VA एंड VB मैं बोल सकता हूँ माइनस V1 माइनस, सॉरी A नाम दिया है ना, VA माइनस VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि ये कैसे होगा? माइनस R अपॉन R VA माइनस R अपॉन R VB, क्योंकि RF और R1 इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से VO ड्यू टू VA VB क्या आ गया? माइनस VA माइनस VB, ये एक मिल गया। अब इन दोनों को जीरो कर दिया, VA VB जीरो कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये जाता है कि एक एक हमको एनालाइज करना पड़ता है, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद है कैसे? कि सपोज मैंने VD जीरो कर दिया तो अब कैसे दिखेगा? ये नॉन इन्वर्टिंग पे ये रजिस्टर ये थोड़ा ग्राउंड हो गए हैं सब, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है और यहाँ पे आपको आया हुआ है एक रजिस्टर R और ये दोनों रजिस्टर ग्राउंड कर दिए गए। एक तो ग्राउंडेड ही है और एक VC VD, ये दोनों करने के कारण ये भी R, ये भी R, ये भी R और यहाँ पे नाम दे दो VC। तो यहाँ का अगर वोल्टेज मुझे पता चल जाए तो मैं डायरेक्ट 1 प्लस RF अपॉन R1 लगा दूंगा और मुझे मिल जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी होंगी? जब भी कर चुके हम लोग, V1 विल बी द वोल्टेज R/3। हाँ, ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएगा? इक्वल टू R/2, है ना, ये दोनों। So this will be the voltage across R/2 upon R plus R/2 into VC, जो कि आया क्या था अपन ने जब भी कर चुके थे? R/3 आया था, यानी VC/3 आया था ना। यस सर। सेम वे कि अगर V1 ड्यू टू VC, अगर ये आया VC/3 तो हमको V1 ड्यू टू VD भी वैसी आएगा, VD/3। अब यहाँ पे हमको कौन सा नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला लगाना है? तो मुझे आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू VC एंड VD कितना आएगा? 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स से आएगा। अब मुझे बताओ RF में कितनी वैल्यू है? R। R1 में कितनी है? ये भी R है और ये भी R है और ये दोनों रजिस्टर अब पैरेलल में आ गए। कितना होगा? दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये R इसके R में पैरेलल में है कि नहीं? ये ग्राउंड ये कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में आगे कि नहीं? दोनों रजिस्टर R। यस सर। तो R पैरेलल विथ R कितना होता है? R इंटू R अपॉन R प्लस R, यानी कि R इंटू R अपॉन 2R, यानी R/2। R/2। ओके, सो अब वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम। कौन सा? कि 1 प्लस RF अपॉन R1, 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। तो RF की जगह हमारा आ गया है 1 प्लस R और R1 की जगह कितना है? R/2। V1 कितना आया? अब भी कैलकुलेट किया हमने। एक है VC/3, हाँ, एक VC/3 और दूसरा VD/3। दोनों का इफेक्ट मैं एक साथ ही कॉमन ले रहा हूँ, VC और VD, क्योंकि सुपरपोजिशन लगाना ही है। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा?
या r/2 का 1 प्लस या r/1, ये 2/r ऐसे आ जाएगा, vc प्लस vd/3 आ जाएगा, r कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 2 कितना होगा? 3 3 कैंसल, गुड। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ VC पे? प्लस VD। बस कितना आसान हो गया कि ओवरऑल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VC प्लस VD माइनस VA माइनस VB। यानी इस तरीके से समिंग एम्पलीफायर है ये कि इन्वर्टिंग को जितने भी इनपुट्स लगाओ, आप जितने भी इनपुट्स लगाओगे वो सबका सब्ट्रैक्शन, और जितना नॉन इन्वर्टिंग को लगाओगे उन सबका एडिशन। यही वो रिलेशन बता रहा है। VC और VD नॉन इन्वर्टिंग को लगा था, VA और VB इन्वर्टिंग को लगा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये इस तरीके से लगा होता, यहाँ पे और 2 की जगह 3 रहते, ये तीनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, R R R R, यहाँ V1 V2 V3, तो ये सब सब्ट्रैक्ट होते, VO इक्वल्स टू ये सब माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, और यहाँ पे एक रजिस्टर ग्राउंड, और यहाँ जितने भी रजिस्टर रहेंगे यानी वो इनपुट वोल्टेजेस रहेंगे वो सब ऐड होंगे। सपोज 3 दे दिया मैंने, V4 V5 V6, तो ये सब इसमें ऐड होंगे, V4 V5 V6। चाहे तो ये आप ट्राई करके देखना कि ऐसा होता है क्या। ये इन्वर्टिंग को जितने भी लगेंगे उतने सब्ट्रैक्ट होंगे, नॉन इन्वर्टिंग को जितने लगेंगे उतने ऐड होते जाए। ओके, अब इसके बेस पे आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। इसी टाइप से इसके बेस पे आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करने, मैं एक आध बार कभी कभी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स या तो समझाऊंगा या फिर डायरेक्टली असाइनमेंट में ले लूंगा। सो आई होप this summing amplifier adder subtractor is clear to you. As we have seen in digital adder and subtractor, there we were adding bits digital, यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल ऐड कर रहे हैं। अब इसका यूज क्या है, कोई एप्लीकेशन बताएगा? जरा देखो इसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ क्या लिखा है। फर्स्ट इसमें ऑडियो मिक्सर, और सेकंड देखो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये आप लोगों ने यूज कर चुके हैं, पिछले बार मैंने बताया था। यह ऑप-एम्प नाम की चीज आएंगी बोला था नेक्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ जो भी है उस सब करंट का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 बिट का डिजिटल डेटा देते हैं, उसके इक्विवेलेंटली यहाँ पे एनालॉग वैल्यू मिलती है। सो दिस कैन बी यूज एज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। R2R नेटवर्क देखे थे और एक वेटेड रजिस्टर पढ़ा था। देखो वेटेड रजिस्टर में ये R, 2R, 4R, 8R ऐसे वैल्यूज आई थी, और R2R नेटवर्क में R2R ऐसे डबल डबल रहता था। तो दिस इज यूज एज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब यहाँ 1010 जो भी वैल्यू देंगे उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे एनालॉग वैल्यू मिलेगा। दूसरा एप्लीकेशन ये ऑडियो मिक्सर। कभी आपने गैदरिंग के वक्त, कल्चरल प्रोग्राम के वक्त देखा होगा आपने कि वहां पे एक नीचे, जब ऑर्केस्ट्रा में कोई लोग गाना गाते रहते हैं तो नीचे एक आदमी ऊपर नीचे करता है, आपको याद है वो एक स्लाइडर ऊपर नीचे करता है? सर वो है मिक्सर। वो क्या कर रहा है, उसके स्लाइडर में वो मल्टीपल चैनल्स है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ऐसे मानो चलो ये वोकल्स लिखा हुआ है, मतलब वो जो गाना गा रहे हैं ना उसका माइक है। ये गिटार, ये ड्रम्स, ऐसे कितने इनपुट्स हो सकते हैं। ये सब इनपुट्स में से यहाँ से हमारा एडिशन होने वाला है। यहाँ हम सब सिग्नल का एडिशन हो रहा है, लेकिन किसका प्रमाण कितना रहना चाहिए, तो यहाँ पे वो रजिस्टर वेरिएबल है, इसको वो चेंज कर रहा है स्लाइडर से। क्या होता है, जब गायक गाना गाता है ना तो उसका आवाज बड़ा करते हैं, जब गायक गाना नहीं गाता ना तो उसका आवाज कम कर देते हैं और म्यूजिक का आवाज बढ़ा देते हैं। आप कोई भी गाने को ऑब्जर्व करना, जब गायक गाना गाता है ना तो म्यूजिक का साउंड कम आता है, क्योंकि उसकी आवाज अच्छे से आना चाहिए करके बैकग्राउंड म्यूजिक को उसका गेन कम कर देते हैं। अब गेन की लैंग्वेज में बोले तो अच्छा लगता है ना अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। हम वॉल्यूम कम हो गया बोले तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसका गेन रिड्यूस कर दिया, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। और जब गायक गाना गाता है तो वोकल का हम बढ़ा। ये देख रहे हैं सब, ये पैरेलल, ये पॉट टाइप का दिया हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर दिखाया है, तो वो स्लाइडर है। सो नाउ यू आर गेटिंग। और ये फिल्टर लगा हुआ है, छोटा सा फिल्टर दिया है कि उसके वॉइस फिल्टर हो गया है, क्योंकि ये दूर से आता है तो थोड़ा नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो आर यू गेटिंग ये ऑडियो मिक्सर कैसे? मल्टीपल चैनल से वी आर गेटिंग ए ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा की फीलिंग में याद देना, कभी भी गाने को इस तरीके से अप्रिशिएट करना कि when the music is lowering, when the music is increasing, समझे? Getting my point? यस सर। वैसे और एक इक्वलाइजर होता है, वो कभी देखा है आपने? आपने टेप रिकॉर्डर में कभी देखा होगा, बास, ट्रेबल वगैरह वगैरह।
वो क्या होता है जरा, Yes, sir. वो क्या होता है? सर उसमें वो जो addition- हाँ, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करता है। एग्जैक्टली हम लोग फिल्टर में वही चीज पढ़ेंगे। आप लोगों ने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर तो सुना होगा। Yes, यस sir. सर। तो लो पास में लो फ्रीक्वेंसी पास होती है, हाई पास में हाई फ्रीक्वेंसी पास होती है, और एक बैंड पास रहता है कि बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पास होती है। अल्टीमेटली व्हाट ही इज डूइंग, whatever the signals it is getting, in order to increase the effect or boost the effect, what it is doing, it treble यानी हाई फ्रीक्वेंसी बूस्ट करता है, तो जिनमें झनकार बीट्स अच्छे से सुनाई आती है, बहुत अच्छे से, और लो फ्रीक्वेंसी जिसमें करते हैं तो डग्गा बजता है, जिसमें डग्गा आप समझते हैं ड्रम्स वगैरह का, झनकार बीट्स यानी हाई फ्रीक्वेंसी, ट्विटर और ट्वीटिंग ऑफ ए बर्ड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी। मेल और फीमेल में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बताओ तो, आप लोग सिग्नल्स को कैसे समझते हैं जरा हम समझ, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है? पक्का सर लोज में मेल और हाईज में फीमेल। हाई फ्रीक्वेंसी फीमेल की होती है ना। यस सर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को समझ में आना चाहिए, अदरवाइज वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकेगा, बराबर है ना। और वैसे झनकार बीट्स जब बजते हैं तो दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। लोअर डग्गा ढकढक, या फिर आप कभी संदल वंदल में सुनते हैं जब आपके दिल में धड़ 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 होता है, तो दैट इज ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी बूस्टिंग। गेटिंग माय पॉइंट? वो जब धार धार मारता है ड्रम्स पे ना, तो वो लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है, उसका इफेक्ट अपने ऐसे छाती पे कुछ तो भी होते रहता है, मतलब बम्पिंग या कुछ ऐसा, मतलब हार्ट्स पे ऐसा लगने लगता है कितना जबरदस्त आ रहा है, और मजा भी आता है आप लोगों को, दैट यू एंजॉय आल्सो। सो दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसीज। सो आई सपोज यू आर गेटिंग दैट फ्रीक्वेंसी सेंस एंड ए इंटेंसिटी सेंस। सो ऑडियो मिक्सर में हम लोग इंटेंसिटी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कर रहे हैं, और इक्वलाइजर में फ्रीक्वेंसीज होती है। आई होप द थिंग्स आर नाउ क्लियर and you are getting the things. So I suppose you should, in non-inverting amplifier